السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرینہ کی ساس گونگی تھی اور اپنے بیٹے سے اشاروں میں زرینہ کی شکایتیں لگاتی اور زرینہ کا شوہر اس کے ساتھ مار پیٹ کر۔ زرینہ اپنے گونگی ساس سے بے حد بیزار آ گئی، لیکن شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے زرینہ ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر سے آتی آوازیں وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بری طرح سے کانپ رہی۔ باہر سے اس کی ساس کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی۔ وہ جانتی تھی آج پھر اس کا شوہر کامران اس کو ادھیڑ کر رکھ دے، لیکن وہ کیا کرتے؟ اسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ جیسے جیسے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے اس کا ننھا سا دل مزید خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے امتحان کی گھڑی شروع ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ کیا کہا ہے تم نے اماں سے جو وہ اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ کامران ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، اس کے بال اپنے شکنجے میں جکڑتا ہوا دھاڑا۔ میں نے کچھ نہیں کہا سائیں۔ اس کی آواز بے حد کم تھی۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی لرز رہی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے گستاخ عورت! کامران بلا دریغ اس کے منہ پر تھپڑ جڑتا اس کو بیڈ پر پھینک گیا۔ سائیں مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی۔ میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ کامران نے ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سائیں مت کریں اتنا ظلم۔ وہ روتی تڑپتی اس سے بھیک مانگ رہی، لیکن کامران بنا اس کی ایک بھی التجا سنے اس پر ہوس لٹانے لگا۔ دروازے کے پار کھڑی اس کی ساس اس کی التجائیں سنتی فخریہ انداز میں مسکراتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرینہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ زرینہ جب 5 سال کی تھی تب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سارا دن وہ اپنے نشئی باپ کے لیے کام کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے خوب سخت سست سناتا تھا۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اس کا نکاح اس سے 15 سال بڑے آدمی 32 سالہ کامران سے کر دیا۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے گھر کی دہلیز پر کبھی قدم نہ رکھے۔ کامران کے گھر سے اگر نکلے گا تو اس کا جنازہ ہی نکلے گا۔ وہ جب بیاہ کر پہلے دن گھر میں داخل ہوئی تو وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تب اس پر ایک مزید بڑا انکشاف ہوا کہ اس کی ساس بول نہیں سکتی۔ کامران نے اس پر پہلی ہی رات اس کی حیثیت واضح کر دی کہ وہ اسے صرف اپنی ضرورت کے تحت نکاح کرنے کے لیے لایا ہے۔ زرینہ کو گھر کا ہر کام کرنا ہوگا اور اس کے ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی۔ اگر اس نے خلاف کامران نے کسی کے بھی منہ سے ایک لفظ بھی سن لیا تو کامران کل کے آئی لڑکی کی جگہ اپنے گھر کے افراد کی بات مانے گا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کامران سے کوئی امید نہ رکھے۔ اس رات وہ ساری رات خاموشی سے کامران کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ اگلی صبح ہی اس کی ساس نے اسے اشاروں میں سمجھا دیا کہ گھر کا سارا کام وہ کیا کرے گی، جس پر زرینہ راضی بھی ہو گئی۔ اس نے ولیمے کے اگلے دن سے ہی گھر کو اچھی طرح سنبھال لیا، لیکن اس کی ساس کو گھر کا سکون کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ ایک روز جب کامران اپنے کام سے گھر واپس آئے تو اس کی ساس نے کامران کو اشاروں میں جانے کیا کچھ بتایا۔ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کامران نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور کہا تھا، دوبارہ میں ماں سے کبھی بدتمیزی مت کرنا۔ زرینہ نے قصور نہ ہونے کے باوجود بھی فرزانہ بیگم سے معافی مانگی تھی اور کامران کے سامنے کہا تھا کہ وہ آئندہ کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن اس دن کے بعد سے فرزانہ بیگم آئے روز اس کی شکایت لگاتی اور کامران کو بھی جیسے اسے مارنے کا بہانہ چاہیے ہوتا۔ وہ بنا اس کی طرف کی بات سنے، بنا اسے کوئی موقع دیے اس کو روزانہ اپنے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ زرینہ کامران سے ڈرنے لگی تھی۔
वो उसकी आवाज भी सुन लेती तो उसका वजूद लरजने लगता था। उसकी शादी को 1 साल गुजर चुका था। इस दौरान वो उसकी मारपीट की वजह से 2-3 बार अपने हवास गवा चुकी थी, लेकिन वो जालिम उस पर जुल्म करने से बाज नहीं आया था। जैसा उसकी माँ कह देती, वही कामरान के लिए हरफे आखिर होता था। वो हर रोज उसे कोई न कोई नई अजियत देती, लेकिन वो उनके जुल्म के खिलाफ शिकायत करती भी तो किससे? उसके अपने बाप ने उसे ये कहा था कि वो दोबारा मुड़ कर उस घर की तरफ ना देखे। तब से जरीना ने भी जैसे कसम खा ली थी कि वो इन सब का किया एक एक जुल्म बर्दाश्त करती थी, लेकिन कभी अपने बाप के पास वापस न गई, जिसने कभी पलट कर उसकी खबर तक न ली। आज भी जो कुछ नहीं हुआ था। फरजाना बेगम ने इशारों में उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो किचन के काम में इतनी मसरूफ थी कि उनकी तरफ मुतवज्जो ना हो सकी, और उन्होंने इस बात को जाने किस किस अंदाज में अपने बेटे के सामने बयान किया था, जो वो बिना उसकी एक भी सुने एक बार फिर उसे अपने तशद्दुद का शिकार बना गया था। जरीना कहाँ मर गई हो? कामरान ने कमरे में खड़े ही ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसे आवाज लगाई थी। जरीना आटा गूंद कर रखते, हाथ साफ करती, तेजी से किचन से निकलती कमरे की तरफ बढ़ी। लाउंज में बैठी फरजाना बेगम ने नखुवत से सर झटका। ये लड़की उन्हें जहर से भी ज्यादा बुरी लगती थी। एक तो वो कम उम्र थी, दूसरा सारा दिन किचन के कामों में घुसी रहने की वजह से उसकी बेपनाह खूबसूरती किसी सूरत मानद नहीं पड़ती थी। उन्हें यही डर था कि वो लड़की कहीं उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। वो आए रोज कामरान को उसके खिलाफ करते, पर जाने वो उसकी मार खाने के बावजूद भी क्यों उनका घर छोड़कर नहीं जा रही। लेकिन फरजाना बेगम उसे हर सूरत घर से निकलवा कर ही दम लेना चाहते। जी क्या हुआ? कमरे का दरवाजा खोलती वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, कामरान ने खूनखार नजरों से उसे घूरा। जरीना की जान हवा हुई। मेरा पर्स कहाँ है? कामरान ने अपने बालों में बुर्श फेरते हुए उसकी तरफ रुख मोड़ लिया। जी यही है, ये पड़ा हुआ है। वो बेड पर तकिए के पास से पड़ा उसका पर्स उठाकर सामने करती हुई बोली, क्या कर रही थी तुम बाहर? वो पर्स वापस सामने रखकर वापस जाने वाली थी, जब उसकी बाजू पकड़कर वो उसे अपनी तरफ खींच गया। जी वो आपका खाना, जरीना ने लरजते हुए लहजे में कहा। तुम हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हो। कामरान उसकी नाजुक कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। जरीना की पलकें लर्ज गईं। वो घबराई हुई थी, उसे कोई बात नहीं बन रही थी, इसलिए उसके हिसार में खामोश खड़ी रही। कामरान उसका चेहरा ऊंचा करता उसके होंठों पर झुका था। वो उस पर अपना लम्स छोड़ता पीछे हटा तो जरीना के चेहरे में शदाबी घुली थी। कामरान ने मबहूत होते हुए उसके चेहरे के रंग देखे थे। इससे पहले वो मजीद कोई जिसारत करता, बाहर से उसकी माँ की आवाजें आने लगी, जाओ देखो अम्मा को क्या चाहिए, मुझे दोबारा शिकायत का मौका न मिले। कामरान पीछे होता हुआ अपना पर्स पैंट की जेब में अड़सता हुआ बोला, तो जरीना जी कहती बाहर निकल गई। बाहर जाते ही फरजाना बेगम गुस्से से मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ करती गुस्से से उसे नाश्ता देने का इशारा करने लगी, तो जरीना सर हिलाती हुई तेजी से रोटियां बनाने लगी। माजिद साहब और कामरान खाना खाते अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वो काम कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर जमाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने पूछ कर दरवाजा खोला तो सामने ही उनके मोहल्ले की कोई लड़की खड़ी थी। बाजी, आज दोपहर में हमारे घर में मिलाद है, आप जरूर आना, वो लड़की कहकर भाग गई। जरीना मुस्कुराती हुई वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। वो सब सामान समेटते अपने कमरे में चली गई।
फरजाना बेगम ने दूर तक उसे वापस जाते हुए देखा। कौन आया था बाहर? जरीना ने उन्हें नहीं बताया था, और आज ये बात जरीना को बहुत बुरी तरह पछताने पर मजबूर करने वाली थी। कामरान थका हारा घर में दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी वालदा बैठी थी। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, जरीना उसे कहीं नजर न आई। आज वो उसकी वजह से ही जल्दी आया था। सुबह जब वो उससे बात करने के बाद बाहर गई थी, तब से ही कामरान के दिल में बेचैनी हो रही थी। उसका दिल मचल रहा था जरीना के पास जाने के लिए। वो जाना भी चाहता था, इसलिए ही आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। और यहाँ आते ही उसको जिसकी तलाश थी वो सामने नजर ही नहीं आई। उसने फरजाना बेगम के पास बैठते ही साथ ही जरीना को आवाज लगाई, जरीना कहाँ हो? पानी लेकर आओ। कामरान ने इस बार गुस्से से आवाज लगाई। फरजाना बेगम, जो पहले ही भरी बैठी थी, उन्होंने इशारों में उसे समझाया कि जरीना घर नहीं है। क्या मतलब अम्मा, घर नहीं है? घर नहीं है तो कहाँ है? कामरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। फरजाना बेगम ने इशारे से बताया कि पता नहीं बाहर कौन आया था, शायद कोई लड़का था, वो उससे बात कर रही थी, फिर थोड़ी देर बाद तैयार होती घर से निकल गई। ये सुनते ही कामरान का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो हाल में चक्कर लगाने लगा। फरजाना बेगम को अपना काम पूरा होता नजर आया तो उठकर कमरे में चली गई। मिलाद पर उसकी काफी औरतों से जान पहचान हो गई। सबको ही वो मासूम सी गुड़िया बेहद पसंद आई थी। वहां उसने एक खूबसूरत नात भी पढ़ी थी, और वहां बैठी तमाम औरतें, लड़कियां उसकी जादुई आवाज सुनती हैरान रह गई थी। मिलाद जब खत्म हुआ तो काफी ज्यादा वक्त हो चुका था। वो जल्दी से घर की तरफ बढ़ी। खाना बनाने की आज जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिनके घर मिलाद था उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी के हाथों उसके घर खाना भिजवा देंगी। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई तो लाउंज में कामरान को चक्कर लगाते देखकर उसके हवास गुम हुए थे। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसका दिल कह रहा था कि यहीं से वापस भाग जाए, क्योंकि कामरान के तासुरात उसे किसी बुरी खबर का अंदेशा दे रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में मार्च करते कामरान के कदम थमे। वो तने हुए तासुरात से एक झटके में उसकी तरफ पलटा। कहाँ गई थी तुम? उसकी सर्द ठिठुरती आवाज जरीना के कानों में गूंजी। उसका दिल उछल कर हल्क में आया। ऐसाई में मिलाद पर गई थी, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। झूठ, झूठ बोलती हो। अपने किसी आशिक के साथ गई। जल्दी बताओ वरना जान से मार डालूंगा। कामरान ने उसका चेहरा अपने हाथ में दबोचा। साई में सच। वो रोती हुई उसके हाथ से अपना चेहरा छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पीछे रंग रलियां मनाएगी? कामरान बिना इर्द गिर्द देखे अपनी पैंट से बेल्ट निकालता उसको बुरी तरह से मारने लगा था। लाउंज में कामरान की ऊंची आवाजों के साथ साथ जरीना की चीखें गूंजने लगी, जो अंदर बैठी फरजाना बेगम को सकून पहुंचा रही। कामरान ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। बेल्ट की जरबें बार बार लगने से जगह जगह से उसके कपड़े फट चुके थे। कामरान उसको मुसलसल मार रहा था। अब तो वो चीख चीख कर भी थक चुकी थी। जख्मों से खून रसने लगा था। वो मजीद उसे मारता जब उसी वक्त कामरान के वालिद माजिद साहब घर में दाखिल हुए। वो अपने सामने उस पर इतना जुल्म होता बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से बेल्ट पकड़ते उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ चुके थे। तुम्हारे हवास अपने काबू में हैं? किस बेदर्दी से तुम बच्ची को मार रहे हो? कभी आज तक मुझे अपनी मां पर हाथ उठाते हुए देखा है क्या? माजिद साहब की गुर्राहट
पूरे लाउंज में गूंजी थी। अंदर बैठी फरजाना बेगम भी उनकी बात पर लर्जी। ये हकीकत थी, उन्होंने आज तक कभी भी फरजाना बेगम पर हाथ नहीं उठाया था। बाबा, आप जानते भी हैं क्या किया है इसने? घर से भागकर अपने किसी आशिक के साथ गई। चिट्टाख। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब माजिद साहब का एक बार फिर से हाथ उठा था। घर से भागने वालियां कभी यूं वापस नहीं आती। माजिद साहब गुर्राए थे। उन्होंने आगे बढ़ते अपनी शाल उतारकर उसके जख्मों से चूर बदन पर उड़ाते उसे खड़ा किया था। बेटा, तुम अंदर जाओ। माजिद साहब ने उसके सर पर हाथ रखते उसे अंदर भेजा था। जरीना गुमसुम सी किसी रोबोट की मानिंद दर्द बर्दाश्त करते हुए बमुश्किल चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो गई तो माजिद साहब फिर से कामरान की तरफ मतवज्जो हुए, जो खड़ा गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। कभी अपनी आंखों से अपनी मां की बंधी हुई पट्टी खोल कर देखो तो तुम्हें एहसास हो कि तुमने एक खूबसूरत फूल को रोंद डाला है। मैं तो आज इस बात पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि तुम्हारी मां बोल नहीं सकती, वरना तो वो हम मां बेटे को भी शायद एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंचाने में कामयाब हो चुकी होती। माजिद साहब अफसोस से बोले थे। इतने में ही दरवाजा खटका। माजिद साहब ने आगे बढ़ते दरवाजा खोला। सामने ही वो दोपहर वाली लड़की खड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, उसने चहकते हुए कहा। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? माजिद साहब उसे जानते थे, इसलिए खुशदिली से मिले। उनके चेहरे पर उस वक्त गुजरे लम्हात का शायबा तक न था। वो अपने घर में चल रहे हालात की खबर बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। मैं ठीक हूं अंकल, ये खाना है। आज हमारे घर मिलाद था। जरीना बाबी वहां आई थी। उन्होंने अच्छी सी नात भी पढ़ी थी। मुझे अम्मी ने भेजा है कि मैं ये खाना आपके घर दे आऊं। वो लड़की कुछ ज्यादा ही बातूनी थी। जल्दी में कहते उसने ट्रे माजिद साहब की तरफ बढ़ाई, जबकि उनसे कुछ फासले पर खड़े कामरान ने उस लड़की की सारी बातें सुनी थी। ठीक है बेटा, बर्तन सुबोले जाना। माजिद साहब ने उसके सर पर हाथ रखते उससे ट्रे ली तो वो लड़की जी अच्छा कहती वहां से चली गई। माजिद साहब एक नजर सामने खड़े कामरान पर डालते ट्रे अपने हाथों में पकड़े किचन की तरफ बढ़ गए। कामरान की समातों में एक बार फिर उस लड़की के अल्फाज गूंजे थे जब वो कह रही थी, जरीना भाभी हमारे घर मिलाद पर आई थी। फिर उसे जरीना की दी गई दुहाइयां याद आई थी। उसका बताना याद आया था जब वो कह रही थी कि मैं मिलाद पर गई थी। लेकिन कामरान ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसने फरजाना बेगम के इशारों से उनकी बात समझ ली थी, लेकिन अपनी बीवी जो उसको जुबान से बोल बोल कर सफाइयां दे रही थी, उसने उसकी बात को सुनना तक गवारा नहीं किया था। उसने इतना पढ़े लिखे होकर भी जाहिलों की तरह अपनी बीवी पर बार बार हाथ उठाया और आज तो हद ही कर दी थी, लेकिन उसने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया था। कामरान खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगर तुम में कुछ शर्म बाकी है तो जाकर उस बच्ची को देखो जिसको तुमने उधेड़ कर रख दिया है। माजिद साहब कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कामरान जो शर्मिंदा सा वहां खड़ा था, उनकी बात सुनते ही उसकी आंखों के सामने वो नाजुक वजूद आया था। कामरान तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही वो जख्मों से चूर खून में लथपथ ठंडे फर्श पर बेहोश होकर बेगाना पड़ी थी। जरीना। कामरान तड़पता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। उसने जरीना को सीधा किया तो उसका दिल धक से रह गया था। वो बेहोश थी। कामरान जल्दी से उसे उठाता बेड पर डाल गया। उसके कपड़े अलग करते, उसके जख्म साफ करते, वो उसे आरामदेह कपड़े पहना गया। ये सब उसने किस जब्त से किया था वो बता नहीं सकता था। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था।
कुछ ही देर में वो उसके बाजुओं के जख्मों पर मरहम रखता सीधा हुआ था। उसके जख्म साफ करने पर जरीना की बेहोशी में भी मद्दम मद्दम सी सिसकियां गूंज रही थीं। वो तड़प रही थी और उसकी तड़प देखकर कामरान तड़प रहा था। उसके जख्म साफ करके उसकी पेशानी पर बूसा देता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहां अपने हाथ धोते हुए वो बाहर निकल गया। खाना वो लड़की जो देकर गई थी वो पहले से ही पड़ा था। उसने वही खाना थोड़ा सा निकालते गरम किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे में दाखिल होते खाना बेड की साइड टेबल पर रखा, खुद उसके बराबर बैठा, उसे जगाने लगा। जरीना, उसके गाल थपथपाते कामरान ने उसे होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन बेसुध। जरीना उठो, कुछ खाकर दवाई लो। कामरान ने एक बार फिर से उसका गाल थपथपाया। जरीना की समातों में उसकी भारी आवाज गूंजी तो वो होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली तो करीब ही कामरान को देखते वो लरजती हुई पीछे हुई थी। साईं, मैं सच में मिलाद पर गई थी। उसके हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी, पर एक बार फिर से वो बेल्ट की मार नहीं खा सकती थी, इसलिए खौफजदा लहजे में वो सफाई देने लगी। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा, सीधी होकर बैठो। कामरान ने उसका बाजू पकड़ते उसे सीधा करके बिठाया। खाना खाओ। कामरान ने उसके आगे खाने की ट्रे रखी तो जरीना डरती हुई उसका हुक्म बजा लाने लगी। वो बार बार चोर नजर उस पर भी डाल रही थी। कामरान उसका खूबसूरत चेहरा इतनी देर तक तकता रहा जितनी देर तक उसने खाने से हाथ नहीं खींचा। उसने ट्रे पीछे खिसकाई और उठने लगी। कहाँ जा रही हो? कामरान ने उसे वापस बिठाते जरा सख्त लहजे में पूछा। जख्मों से चूर थी वो, फिर भी बिस्तर से उठ रही थी। वो साईं, आपका खाना लाना है और अम्मा साईं और बाबा साईं को भी खाना देना है। जरीना ने सर झुकाते हुए अपनी उंगलियां चटखाई। चुपचाप यहां बैठी रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी हालत देखी है तुमने, पागल लड़की। इस हालत में तुम काम करोगी? कामरान ने गुस्से से उसे डपटा तो वो सहमते हुए थोड़ा पीछे खिसकी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसके पीछे खिसकने पर कामरान को फिर से गुस्सा आने लगा, पर बात अब पहले जैसी ना रही थी कि वो इस पर अपना सारा गुस्सा उतार कर सुकून से रह लेता। इसलिए लब भेंचते अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। कुछ नहीं साईं, उसने अपनी रोंधी हुई आवाज पर बमुश्किल काबू पाया था, वरना उसे हर जगह के किए गए जख्मों से दर्द नासूर बनकर उठ रहा था, जो उसके चेहरे पर भी वाजे था। कामरान उसको तकलीफ में देखते पेन किलर उसकी तरफ बढ़ा गया। ये दवाई खाओ, दर्द कम होगा। कामरान ने गोली उसके हाथ में रखते पानी का गिलास सामने किया तो वो जल्दी से गोली मुंह में डालती आधा गिलास पानी का पी गई, वरना गोली खाना उसे जहर लगता था। अगर कामरान का डर ना होता तो वो कभी गोली ना खाती। कामरान मुतमईन होता उस बेड पर लिटाकर आराम करने का कहता, खुद ट्रे उठाए बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने बाकी सारा खाना गरम किया। माजिद साहब और फौजिया बेगम को बुला लाया ताकि वो दोनों भी खाना खा सकें। खिलाफे मामूल आज फौजिया बेगम चुप थी। माजिद साहब ने उन्हें कमरे में अच्छा खासा झाड़ दिया था। वो जानते थे कि ये सब किया धरा फौजिया बेगम का ही होगा। कामरान ने फौजिया बेगम पर एक नजर नहीं डाली थी। वो खामोशी से खाना खत्म करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन सुबह भी उसने अपना नाश्ता खुद बनाया था। उसने जरीना को तलकीन की थी कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक जरीना ठीक नहीं हो जाती। वो खुद उसका ख्याल रख रहा था। उसने घर के लिए एक मुलाजमा का भी बंदोबस्त कर दिया था जो सबके लिए खाना बना कर जाती थी और घर की सफाई भी करके जाती थी। फौजिया बेगम को तो ये सब देखते देखते पतंगे लग चुकी थी। उन्होंने कामरान से एक दो बार
बात करने की कोशिश की। कामरान उनके साथ पहले की तरह नॉर्मल अंदाज में ही बात करता था, लेकिन जब भी वो जरीना के हवाले से बात करने के लिए कोई इशारा करती तो वो उन्हें खामोश करवा देता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ के सामने कभी आवाज ऊंची करे। दूसरी तरफ जरीना थी। जिस तरह कामरान उसका ख्याल रख रहा था, वो जरीना के दिल में अपने लिए अलग मुकाम बना रहा था। वो अब उठकर थोड़ा चलने फिरने लगी थी। उसके जख्म भरने लगे थे। दर्द तो अब भी होता था, लेकिन पहले से बहुत कम। क्या सोचा जा रहा है? वो मुस्कुराते हुए उसके गिर्द हसार बांधता हुआ बोला। कामरान जब कमरे में दाखिल हुआ था तो उसने जरीना को खुली खिड़की से चांद को तकते पाया। वो अपना बैग सोफे पर रखता उसके करीब चला आया। जरीना जो अपनी सोचों में गुम थी, उसकी अचानक पुकार पर चौंक गई। वो बौखलाई सी रुख मोड़ने लगी, लेकिन कामरान के हसार में होने की वजह से वो कसमकस साती हुई वहीं खड़ी रह गई। साईं, आप कब आए? जरीना जब उसके हसार से निकल ना सकी तो वापस चांद को देखते हुए उससे पूछने लगी। तभी जब तुम अपनी सोचों में गुम थी। कामरान ने उसके कान में सरगोशी करते हुए वहां अपना लम्स छोड़ा तो जरीना की कपकपाहट बढ़ी। कामरान ने उसके यूं कपकपाने को खूब नोटिस किया था। वो उसको उठाता हुआ बेड पर ले आया। दवाई खाई थी तुमने? उसने रोज वाला सवाल किया, और रोज की तरह ही जरीना का सर नफी में हिला था। कामरान ने घूर कर उसे देखा। वो समझ गया था उसे दवाई खाना नहीं पसंद, पर अगर वो ठीक होना चाहती थी तो दवाई खाना तो बहुत जरूरी था। कामरान ने साइड टेबल पर पड़े पत्ते से एक गोली निकालते उसके हाथ पर रखते पानी का गिलास सामने किया। साईं, अब मैं ठीक हूं, मुझे नहीं खानी ये दवाई। जरीना बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली। वो कतन दवाई नहीं खाना चाहती थी। इतने दिन से दवाई खा खा कर वो उकता चुकी थी। खामोशी से दवाई खाओ जरीना, वरना जो डोज मैं तुम्हें दूंगा फिर तुम मेरे बिना कहे ही दवाई खाया करोगे। कामरान उसे घूरते हुए मायने खैज से लहजे में बोला तो जरीना सुर्ख पड़ी। उसने कहाँ कामरान के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुने थे? कहाँ देखा था उसका ये केयरिंग अंदाज? जरीना ने उसके हाथ से दवाई लेते खाई तो कामरान ने उसकी पेशानी पर बूसा दिया। जरीना की आंखों में नमी चमकी। तुम रो रही हो? कामरान ने परेशानी से उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए पूछा। साईं, मत करें मेरे साथ ऐसा। वो कामरान के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। क्या कह रही हो जरीना? कामरान परेशान सा हुआ। जरीना की बात समझ नहीं आई थी। मुझे आपकी आदत हो रही है साईं, प्लीज ऐसा मत करें। जैसा आप पहले आपका रवैया था मेरे साथ, वही अपनाए रखें, वरना इस रवैये के बाद मैं आपका वो रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी साईं, मैं मर जाऊंगी। जरीना सिसकते हुए बोली। कामरान उसकी बात सुनकर परेशान हुआ। जरीना, खामोश हो जाओ। तुम मुझे दोबारा अब कभी भी वैसा नहीं पाओगी। ये कामरान का तुमसे वादा है। मैं भटक गया था, मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं अब तुमसे वादा कर रहा हूं, अब कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कामरान ने उसके आंसू अपने लबों से चुने थे। जरीना उसके सीने से लगती सिसक उठी। वो कितनी ही देर तक रोती रही थी और कामरान उसे अपने मोहब्बत भरे अल्फाज के साथ खामोश करवाता, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा था। ये वो भी नहीं जान पाया था उसे कब जरीना से मोहब्बत हुई, पर यह सच था उसे मासूम सी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। कब, कैसे, कहाँ, वो इसके लिए इतनी जरूरी हो चुकी थी कि वो उसके बगैर सांस भी नहीं लेना चाहता था। कामरान, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं अम्मा जान के आराम का ख्याल करते खुद उनकी जगह पर मिलाद में गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। उसके सीने से लगे जरीना ने उस दिन का वाकया भी बयान किया था, जिसे सुनते कामरान लब भींच गया। वो उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता था। कुछ यादें कितनी तल्ख होती हैं,
کہ ان کو सोचते हुए भी इंसान का हल्क तक कड़वा हो जाता है। मुझे तुम पर यकीन है मेरी जान, तुम अब दोबारा कभी उस वाक़े का जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाओगी। हम अब से एक नई शुरुआत करेंगे, वादा करो। कामरान ने उसकी पेशानी पर लब रखते अपना हाथ उसके सामने फैलाया तो जरीना ने बेयकीन नजरों से उसकी तरफ देखा। आप सच कह रहे हैं? जरीना ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूं। कामरान ने उसकी आवाज में बेयकीनी महसूस करते मुस्कुराते हुए उसे अपनी बात का यकीन दिलाया। वादा, जरीना ने चहकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था जिसे कामरान ने मजबूत हथेली में कैद कर लिया था। हाँ, उसने माफ कर दिया था कामरान को, क्योंकि वो मजीद कोई भी बात अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसे माफ ना करती, उससे तलाक का मुतालबा करती तो कहाँ जाती? उसके वालिद ने तो अपने घर के दरवाजे पहले ही उसके लिए बंद कर रखे थे, और फिर जब उसका शौहर खुद आगे बढ़कर उसे नई शुरुआत के लिए कह रहा था तो वो क्यों खुशियों का अपनी तरफ आने वाला रास्ता बंद कर देती? मसला था तो सिर्फ अम्मा साईं का, लेकिन अगर कामरान उसके साथ था तो फिर वो अम्मा साईं की भी हर बात बर्दाश्त करने को तैयार थी। कामरान ने बेड पर लेटते उसका सर अपने सीने पर रखा तो जरीना सर उठाते उसे देखने लगी। कल से राबिया काम करने नहीं आएगी, मैं अपने घर का काम खुद कर सकती हूँ, जरीना ने मुंह बनाते हुए कहा। वो लड़की उसे सख्त जहर लगती थी, जो हर वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिशों में होती थी। लेकिन अभी तुम ठीक नहीं हो जरीना, कामरान ने उसका रोशन चेहरा देखते हुए कहा। मैं ठीक हूं, मेरे जख्म भर चुके हैं और मुझसे नहीं सारा दिन बेड पर बैठा जाता, जरीना ने मुंह बनाते हुए जैसे उसे असल वजह बताई थी। ठीक है, खाना तुम बना लेना, लेकिन घर की सफाई वही किया करेगी। कामरान ने उसकी आधी बात मान ली। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अच्छी सफाई नहीं करती, जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है। आप बस उसे फारिग कर दें, मैं अपना घर खुद बखुद संभाल सकती हूँ, जरीना ने झट से कहा। राबिया का सफाई करने का अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कामरान ने कुछ कहना चाहा था। मैं ठीक हूँ साईं, और मैं अपना घर खुद संभाल सकती हूँ, जरीना ने सर ऊंचा करते उसकी पेशानी को अपने लबों से छुआ था, फिर उसके सीने में छुप गई। ये उसका अपनी बात मनवाने का अंदाज था जो कामरान को काफी पसंद आया था। वो जो पहले उसका अपना घर कहने पर खुशगवार हैरत महसूस कर रहा था, उसकी हरकत पर स्टिल हुआ था। जब तक होश में आया वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा चुकी थी। कामरान ने उसका चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो सख्ती से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती आंखें मीच गई। फिर कामरान ने भी उसे ज्यादा तंग नहीं किया था और वो उसके गिर्द अपना हसार मजबूत करता साइड लैंप बुझाता खुद भी अपनी आंखें बंद कर गया। जल्द ही वो दोनों नींद की वादी में खो चुके थे। वो ठीक हो गई थी, अपनी डेली रूटीन पर वापस आ चुकी थी। तीनों वक्त का खाना वो खुद बनाती थी, पूरे घर की सफाई भी वो खुद करती थी। कपड़े धोने के लिए पहले ही अलग मुलाजमा रखी हुई थी, अब भी कपड़े वो ही धोती थी, लेकिन जिसको घर की सफाई और खाना पकाने के लिए रखा गया था उस मुलाजमा को जरीना निकलवा चुकी थी। उसने अपना घर हस्ती खुद संभाली थी। इस बीच 2-3 बार फौजिया बेगम के गुस्से का भी वो शिकार हो चुकी थी। एक बार तो वो थप्पड़ तक मारने लगी थी, लेकिन जरीना ने कभी पलट कर उन्हें जवाब नहीं दिया था। फौजिया बेगम के थप्पड़ से उसे माजिद साहब ने बचा लिया था। जरीना उनकी हर बात हंसकर सह रही थी, क्योंकि वो उसके शौहर की वालदा थी। अगर उनका रवैया उसके साथ बुरा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो भी बुरी बन जाती। आखिरकार एक ना एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाती ना, ये बात कि कामरान अगर उनका बेटा है तो उसका शौहर है, दोनों का अलग अलग मुकाम है। कामरान ने भी फौजिया बेगम की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं की थी।
बस वो जरीना के बारे में कोई लफ्ज नहीं सुनता था। कामरान का रवैया अब बहुत हद तक जरीना के साथ बदल चुका था। वो कोशिश करता था कि वो इस पर गुस्सा बिल्कुल ना करे, लेकिन फिर भी वो कभी कभार उसके खुद से दूर जाने पर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लेता था। बाद में उससे माफी भी मांग लेता था। वो उसका परियों की तरह ख्याल रखने लगा था। वो दोपहर के लिए सब्जी बना रही थी। जब बाहर का दरवाजा बजा, उसने दरवाजा खोला तो सामने ही उसकी बड़ी नंद अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। पीछे हटो, वो कुछ गुस्से से बोलती जरीना को साइड पर धकेलती अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ गई। जरीना ने दरवाजा लॉक किया और फिर से अपने काम करने लगी। वो सफाई करते हुए जब फौजिया बेगम के कमरे तक पहुंची तो अंदर से आती आवाजें सुनकर उसके होश उड़े थे। जरीना उनकी बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला होने की वजह से उसकी नंद की उस पर नजर पड़ गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। भाभी, मुझे तुम्हारी हाय लग गई है, वो रोती हुई जरीना का हाथ पकड़ते हुए बोली। जरीना तो हैरान परेशान सी हो गई। हाँ, उसने उनकी बात सुनी थी जब वो फौजिया बेगम को बता रही थी कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो चाहता है अब उसकी दूसरी बीवी भी आकर उसी घर में रहे जहां उसकी नंद रहती है। उसका शौहर दोनों को बराबर के हकूक देना चाहता था, लेकिन वो रोती तड़पती यहां पहुंच गई। भाभी, अगर मां भाई तुम पर जुल्म करते थे तो तुमने मुझे क्यों बद्दुआएं दी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो जरीना को झंझोड़ते हुए बोली, जबकि जरीना फक रंगत के साथ बेजान खड़ी थी। बद्दुआएं? उसने तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। वो क्या किसी को बद्दुआ देती? वो तो अपने मरने की दुआएं किया करती थी कि उसे मौत आ जाए और उसे इस जुल्म से छुटकारा मिल जाए। पर ऊपर बैठी वो जात बेनियाज है जो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जरीना ने उसे बद्दुआएं नहीं दी थी, उसे खुद का अपने किए का फल पाया था। वो अपने शौहर को इस कदर आजिज कर चुकी थी कि वो अपने जहनी सुकून के लिए दूसरी शादी कर चुका था। वो रोती तड़पती जरीना पर इल्जाम लगाती जा रही थी। फौजिया बेगम भी अपनी आंखें साफ कर रही। वो ये सोच रही थी कि उनका अपनी बहू के साथ अपनाया गया रवैया उनकी अपनी बेटी के सामने आ चुका है। ये क्या हो रहा है यहाँ? सामने ही अपनी बहन को रोते और जरीना को बुत की तरह खड़े देखकर वो हैरान होता हुआ बोला, भाई, तुम्हारी बहन बर्बाद हो गई है। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। वो रोती बिलखती हुई बोली, ये सब भाभी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे बद्दुआएं दी होंगी जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गई हूं। इस बार वो फिर से बोली तो जरीना उड़ी रंगत के साथ कामरान को देखते हुए नफी में सर हिलाया था। कामरान की सुर्ख आंखें देखकर उसे लग रहा था आज फिर वो बिना किसी वजह से उसकी खाल उधेड़ कर रख देगा। फौजिया, तुम बैठो इधर, जरीना पानी लेकर आओ। कामरान ने फारिया को सोफे पर बिठाते जरीना को हुक्म दिया था। वो इस पल मंजर से गायब हो गई। मुझे नहीं पीना इसके हाथ का पानी। इसकी वजह से मैं आज इस हालत में हूं। इसको निकालो इस घर से बाहर। फारिया जरीना का लाया हुआ पानी का गिलास साइड पर उछालती हुई बोली, फिर उठते हुए जरीना की तरफ हाथ बढ़ा गई। इससे पहले कि फारिया का हाथ जरीना को छूता भी, कामरान ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। बस फारिया, मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करो। जरीना मेरी बीवी है। तुम होती कौन हो उसे घर से निकालने वाली? ये घर अब उसकी मलकियत है। तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी ही की है, कोई गुनाह सरजद नहीं किया जो तुमने यहां आकर अम्मा को परेशान कर दिया है। बेहतर है अपने रवैये में सुधार लाओ और अपना बिखरता हुआ घर बचाओ। कामरान उसका हाथ झटकता हुआ चिल्ला कर बोला। वो अब पहले वाला कामरान वाकई नहीं रहा था जो उसकी बात पर यूं बिना किसी वजह के जरीना को घर से बाहर निकाल देता। जरीना का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। कामरान उसके साथ ठीक था, उसे मजीद कुछ नहीं चाहिए था। तुम बदल गए हो, तुम मेरे भाई नहीं हो।
ورنہ اگر میرا بھائی ہوتا تو وہ اس لڑکی کو چوٹی سے پکڑ کر باہر کا راستہ دکھاتا۔ تم مجھے اس گھر میں واپس جانے کا کہہ رہے ہو جہاں جانا اب میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ کیسے بھائی ہو تم؟ فاریہ چلائی۔ فاریہ تمیز سے بات کرو، اور تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ۔ کامران پہلی بار فاریہ سے بات کرتے دوسری بار سرد انداز میں زرینہ سے بولا تھا۔ زرینہ اس کی آواز پر کانپتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بھیج دو اسے اندر، میری تو اب اس گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تم جیسے بھائی سے تو بہتر تھا میرا کوئی بھائی نہ۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کے چہرے پر تھپڑ پڑا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے تھپڑ مارنے والے کی طرف دیکھا تھا جہاں فوزیہ بیگم آنکھوں میں تیش لیے کھڑی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اس کے نہ ہونے کی بات کرنے والی تھی۔ فوزیہ بیگم برداشت نہیں کر پائی تھی۔ انہوں نے اشاروں میں فاریہ کو اپنے گھر واپس جانے کا کہا۔ وہیں فاریہ ان سے بدظن ہوتی وہاں سے واپس چلی گئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے کامران کے سامنے ہاتھ جوڑے، جنہیں پکڑتا وہ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور کامران کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ فوزیہ بیگم کو بھی اپنے کیے کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے کامران کو اشاروں میں کہا کہ وہ زرینہ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، لیکن کامران نے منع کر دیا۔ اس نے کہا تھا زرینہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوئی۔ فوزیہ بیگم کا دل میں ہی انہیں بد دعائیں دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کامران بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ماجد صاحب آئے تو فوزیہ بیگم نے انہیں بھی سب بتا دیا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ فاریہ جو چاہے خود کو ٹھیک کرے، اگر وہ ٹھیک رہے گی تو داماد صاحب کو کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے فاریہ سے فون پر بات کرتے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی حرکتوں سے عاجز آتے اس کے شوہر نے یہ سب کیا تھا، لیکن حقیقت ویسی نہیں تھی۔ ماجد صاحب نے خود اس کے شوہر سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا تھا فاریہ اسے بہت تنگ کرتی ہے، اسی وجہ سے اس نے فاریہ کو دوسری شادی کی دھمکی دی ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن اگر فاریہ کا رویہ ایسا ہی رہا تو وہ بہت جلد دوسری شادی کر لے گا۔ لیکن ماجد صاحب نے اسے بھی سمجھایا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے۔ اب فاریہ بالکل ٹھیک طریقے سے رہے گی۔ آنے والے دن یوں روٹین میں گزرنے لگے۔ فوزیہ بیگم کا رویہ بھی اب زرینہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہیں اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مزید اپنے گھر کا سکون خود اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چار لوگ اس گھر میں ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ آج وہ پورے 19 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے بہانے بہانے سے کامران کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کامران نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وہ سارے گھر کا کام کر کے تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوئی تھی جب کامران کا گھر کی لینڈ لائن پر فون آیا۔ اس نے کہا آج شام کو تیار رہنا، اس نے زرینہ کے ساتھ ایک دوست کی طرف دعوت میں جانا ہے۔ وہ 7 بجے زرینہ کو گھر سے پک کر لے گا۔ دوپہر میں ایک لڑکا آیا تھا، وہ اسے ایک باکس دے گیا، جس کو زرینہ نے کھول کر دیکھا تو اندر ایک خوبصورت سی میکسی تھی۔ اس کے ساتھ میچنگ کی ہر چیز تھی۔ کامران نے اسے بتایا اسے وہی سب پہن کر تیار ہونا ہے، اور جب وہ لینے آئے گا تو خود پر اچھی طرح چادر اوڑے باہر آ جائے۔ زرینہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ وہ میکسی اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کے کندھوں پر صرف نیٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا، جس کا اظہار اس نے کامران سے بھی کر دیا تھا۔ کامران نے کہا وہ خود پر اچھی طرح چادر اوڑھ لے، وہاں جا کر نہ اتارے، اس طرح وہ کمفرٹیبل رہے گی۔ تو زرینہ بھی یہی سوچتی مطمئن ہو گئی۔ اب وہ پیروں کو چھوتی میکسی پہنے مکمل تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں خود پر ڈالی۔ اس کی خوبصورتی چاند کو بھی مات دے رہی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اتنے میں کار کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے بیڈ پر پڑی شال اٹھاتے خود پر اچھی طرح لپیٹی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کار میں تھا، اپنے دوست کار لے کر آیا تھا۔ روزینہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔
تو کامران نے ایک نظر اس کی شال میں چھپے ہوئے سراپے پر ڈالی۔ بنا کچھ بھی بولے وہ کار سٹارٹ کر گیا۔ کار ایک ہوٹل کے سامنے جا کر رکی۔ سائیں ہم تو آپ کے دوست سے ملنے جانے والے تھے نا؟ زرینہ نے ہوٹل دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کامران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ دوسری طرف سے گھوم کر آتے اس نے زرینہ کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے باہر نکلنے میں مدد دی تھی۔ زرینہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کامران نے کار لاک کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آگے بڑھا۔ اس کو لاؤنج میں چھوڑتے کامران نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے روم کی چابی لی اور اسے لیے لفٹ میں سوار ہوا۔ سائیں، زرینہ نے تھوک نگلتے اسے پکارا۔ وہ لفٹ میں پہلی بار آئی تھی۔ کچھ نہیں، میں ہوں ساتھ۔ کامران نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پینٹ کی پاکٹ سے ایک کالے رنگ کی پٹی نکالتے اس کی آنکھوں پر باندھی۔ سائیں میں، زرینہ کی آواز خوف سے لرزنے لگی۔ میں ادھر ہوں زرینہ۔ کامران نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لفٹ کھلی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا، ساتھ ساتھ اسے بتا بھی رہا تھا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے دروازہ کھولا تھا، پھر زرینہ کو لیے اندر داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتے اس نے زرینہ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ زرینہ نے پلکیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیڈ کے پیچھے دیوار پر بڑا بڑا ہیپی برتھ ڈے زرینہ لکھا ہوا تھا۔ ہر طرف سرخ اور سفید رنگ کے غبارے بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ پر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا۔ بیڈ کی دائیں جانب ایک ٹیبل پڑا تھا جس کے اوپر کیک رکھا ہوا تھا۔ کیک کے اوپر بھی ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ آخر میں زی لکھا ہوا تھا۔ سرپرائز پسند آیا؟ وہ ان سب میں کھوئی ہوئی تھی جب کامران نے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ اس کا چادر اتارتے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ زرینہ نے ارد گرد گھوم کر دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے واقعی یہ سرپرائز بہت پسند آیا تھا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ کامران اس کا ہاتھ پکڑتے کیک کی طرف لے آئے تو زرینہ نے اس کے حصار میں ہی کیک کاٹتے اسے کھلایا۔ یہ تمہارا گفٹ۔ کامران نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ زرینہ نے پکڑ کر کھولتے دیکھا، اس میں ڈبی میں سونے کی انگوٹھی جس کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ یہ بہت پیاری ہے۔ شکریہ سائیں، زرینہ نے چہک کر کہا تو کامران نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زرینہ نے اشارہ سمجھتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ کامران نے دبی سی انگوٹھی نکالتی اس کے ہاتھ میں پہناتے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ زرینہ شرمائی۔ اس کے اس طرح شرمانے پر کامران کا کہکہا گونجا تھا۔ ابھی سے شرما رہی ہو زرجان؟ کامران نے معنی خیزی سے کہا تو زرینہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ سائیں، میرے لیے بھی آپ کے پاس ایک سرپرائز ہے۔ اس نے اسی پوزیشن میں کھڑے بتایا۔ کیسا سرپرائز جان؟ کامران نے جلدی سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ، میں، ہم۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ کیسے بتائے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرجان بتاؤ، ہم کیا؟ کامران کو تجسس ہوا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی چھوٹی سی بیگم اسے کیا سرپرائز دینے والی ہے۔ آپ بابا بننے والے ہیں، زرینہ نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ سنتے کامران سٹل ہوا تھا۔ کافی دیر تک اس کی حرکت نہ محسوس کرتے زرینہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کامران سٹل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زرینہ کو خدشہ ہوا۔ سائیں؟ زرینہ نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو زرجان، میں بابا بننے والا ہوں؟ کامران نے اس کے دونوں بازو جکڑتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تو زرینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کامران خوشی خوشی سے جھومتا اسے گود میں اٹھائے گول گول گھومنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کامران نے اس کو بیڈ پر بٹھاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں بھی، زرینہ نے مدھم سی سرگوشی کی۔ کامران اس کے برابر لیٹا، اسے اپنے حصار میں لیے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا سرگوشیاں کرنے لگا اور زرینہ اس کے حصار میں خود کو انمول ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی
कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।